Hi guys, this is Dr. Hassan Mirza, consulting physician for lifestyle modification, and along with me, Dr. Mahendra Savarkar. He is a physician, chest physician, pulmonologist. You might have heard lot of things, and hundreds of videos are going on regarding the current disaster, the global menace in the name of COVID-19. So we will not go in details for that one. I just will discuss about how the lifestyle modification should be in these days, and regarding the chemistry and the guidelines will be because this is that the disease is related to respiratory system. So he is better authority than me on that. He will highlight on that part of this problem. So here first we will be discussing about what should be the precaution and lifestyle modification should be in these days there. And as far as our country is doing very well, our government is also doing very well and taking initial steps very nicely. So in that, one thing I'll suggest you that you just have to go for 3 points. Just remember 3 points along with the guidelines given by the WHO. You can add these also in that one. One thing you must be remember that you should be a confident. What I mean to say confidence, because confidence is the only way to keep yourself alive. Nothing can be done without confidence. We and you all know about it. That if you do not have confidence in anything, you cannot supposed to even walk, not even cannot you cannot supposed to have a morsel of food in your mouth to put in your mouth without confidence. It means the confidence is the life. And remember, for just fighting with this virus, so-called viruses, everybody knows what is this corona and virus. I will not go in detail. I just will say that how to fight with this enemy, which is just globally keep ourselves isolated, being a human, and that is the prime enemy of ours. So you just take yourself under this building so called as a confidence. You must be confident. You must have to face all things confidently. Look, for everything I said that confidence required here. If you are confident that look, I'll see after it what will be happening, so it will automatically boost your all those system which is automatically runs. So the boosting sort of things comes in you, energy will come. So confidence should be there that nothing will happen, and if it happens, I will supposed to face it. So around half of the problem can be solved with this one. Another the thing is that I would like to say to be highlighted and to be think worried being for preventing or as a preventive measure is that cleanliness. You should be very much careful for this word cleanliness. And of course, being a human and a most advanced creation of the creator, we must be a clean. We are not an animal. So cleanliness is the next part of this preventive measure in this disaster, in this panic situation. Don't be panic, be confident, be clean for all things. Make yourself clean. Always think all things should be cleaned. You see, if you are making yourself in this section as a caring of yourself with the all things and taking yourself in this part and keeping cleaned, making yourself good hygienic one, so half of the problem again will resolve with this one only, because this is a virus. Everybody knows it doesn't have any treatment. Any virus doesn't have any treatment. Even in today is this everywhere. We have to control this accordingly. So cleanliness carries a lot of big problems to be resolved, and it is one of the biggest tool in the hands of us, that we must be taking care of our hygiene, how it should be. And lot of the things you will find attach this word cleanliness with your Google University and WhatsApp University. You will find the lot of guidelines for cleanliness. I will not go in detail of that one. So first I said confidence, it is a life for you. Second, how confidence will come? Okay, I will see what will be the problem, I will face. One thing you remember, if life is there, the next name of life is death. Remember, everybody came in the world just to die.
If life is there, there is no way the next destination of life is the death. So another name you can say the death of the first name, what we call as a life. So when we know that life is the another name of death, so need not to bother about it. You just have to take care about your own confidence and to face the present problem. Don't think what will happen. Facing the problem should be important than to think the result of it. Second, I said that you must be clean and good hygienic. And the last one I will suggest you, immunity, the word we use in medical science, immunity, resistance power or defense mechanism, you can say. Anything you see, just whenever you have a good defense mechanism with you, or if you have a good immunity in you, nothing can touch to you. If it comes inside, if you have a good army with you to make yourself defensive state, nothing will happen. Defense mechanism must be good one. How it will come now, you just question will arise in your mind. I'll say whatever the defense mechanism we have, our body is just what we take in. Don't make your mouth as a dustbin. Your mouth should be a choosy for taking diets. Whatever you eat, accordingly your immunity will be there with you, or defense mechanism will be with you. So these three good tips you can have or you can follow for preventive measurement regarding this present menace so called as a COVID-19. One is confidence, second is cleanliness, and third is immunity. Now I will just shift over to this whole next part of this lecture or suggestion to Dr. Mahendra Savarkar. Dr. Mahendra Savarkar. धन्यवाद डॉक्टर मिर्जा। थैंक यू। आपने जो कुछ भी एडवाइस दिया है, जो कुछ भी गाइडलाइंस आप लोग पब्लिक को देना चाहते हैं, आपका फील्ड साइंस का होने के कारण आपने बहुत अच्छी तरह से समझा के बताया। लेकिन हमारी सोच थोड़ी साइंस से विपरीत होने के कारण हम हमारी कुछ आइडिया दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपका शरीर का संचालक जो है ना, वो आपका माइंड है। अभी आपने बताया कि वो आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ता है, सही बात है। योर फिजिकल हाइजीन, फिजिकल क्लीनलीनेस जितना ज़रूरी है उतना ही आपका माइंड का क्लीन करना जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर जो चलता है ना, ये तो पूरा माइंड का खेल है। लाइफ इज़ नथिंग बट इट इज़ द गेम ऑफ द माइंड। और जो कुछ भी क्रियाएं आपके साथ में होती है और जो कुछ भी आप कार्यान्वित करते हैं, तो इसमें आपका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द माइंड। योर इंटेलिजेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द माइंड। माइंड को भी एनर्जी मिली है कि तर्क संगत सोच विचार करके आपकी बॉडी बाद में निर्णय लेती है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अभी ये जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग जो प्रचलित हुआ है ना, इसके कारण आपके माइंड में बहुत सारा गार्बेज भी भरने में आया है। और सबसे बड़ा गार्बेज जो है आपके माइंड में, वो है आपका फियर, डर। अभी के वातावरण में जानकारी तो आपको मिली है कि कोरोना आया है, लेकिन ये जानकारी के साथ साथ में जो कुछ भी प्रचलित हुआ है वो है डर। यानी कि आपका कॉन्शियस जो है ना, वो तो पूरा भयभीत हो गया है, क्योंकि आपको जानकारी उस तरीके से पारित करने में आई है और आपके सेफ्टी के लिए पारित करने में आया है। लेकिन इसके साथ में जो मॉर्टेलिटी बताई है, दुनिया में जो कुछ भी हाहाकार हो गया है ना, और ये हाहाकार के कारण क्या होगा, ये जो स्पेस है, ग्लोबल स्पेस है ना, इस स्पेस में जो जानकारी संचारित होती है, तो ये तो पूरी फियरफुल जानकारी संचारित हो गई, जिसमें का बहुत सारा एलिमेंट आप ग्राह्य मान रहे। आखिर अपने लाइफ में क्या है, व्हाट इज लाइफ? इट इज द जनरेशन एंड द डीजनरेशन। निसर्ग का लॉ, साइंस भी बोलता है कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी डाइज इंस्टेंटली एज सुन एज इट जनरेट्स, इट इज नॉट यूज एनी मोर। एक साइकिल रेस्पिरेशन की हो गई, एक्टिवेशन हो गया कि बाद में एक्सप्रेशन में उसका डेथ ही होता है, ठीक है। तो डेथ इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज द परमानेंट फेनोमेना ऑफ द रिलैक्सेशन बोलूंगा मैं। यू गेट रिलैक्स, टोटल रिलैक्स फ्रॉम दिस ऑल द कैलेमिटीज। लेकिन ये डेथ कोई चाहता नहीं, क्योंकि आपको सर्वाइव होना है। अब एक कैलेमिटी से सर्वाइव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू फर्स्ट क्लीन अप ऑल द गार्बेज विच इज फिल्ड इन योर माइंड। आपके मन में जितना कुछ भी अंधकार भरने में आया है और जितना कुछ भी डर पैदा करने में आया है ना, तो ये डर जो है, ये अपने शरीर की बायोकेमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो है, हाँ, ये केमिस्ट्री का नेचुरल रिदम जो है पूरा डिस्टर्ब कर देता।
डर ज़्यादा अति वाजबी होना, डर ये आपके शरीर के लिए भयानक है, जैसा कि हमने पहले बताया। और ये डर से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही इलाज है आपके लिए, आपको माइंड की शक्ति और ताकत बढ़ा के, है ना। और ये ताकत बढ़ाने के लिए क्या होगा, आपकी जो प्रीवियस मेमोरी है, क्योंकि माइंड शरीर में बड़े उत्पाद करते रहता, ये कौन सी भी जानकारी ढूंढ के निकलता है और आपके सामने कभी भी कोई भी वक्त में प्रकट कर देता। अब ये जो भरा हुआ डाटा आपके माइंड में सिंस बिगिनिंग, सिंस यूर बर्थ टू टिल डेट, है ना, इसमें से बहुत सारा डाटा आपके काम का नहीं रहता, तो आप उसको फिल्टर नहीं करते। तो ये डाटा को फिल्टर करना है, यानी माइंड की क्लीनिंग प्रोसेस है। अब फिल्टर कैसा करना है कि जो चीज़ जरूरी नहीं है ना, जो वास्तविकता नहीं है, रियलिटी जानना चाहिए, है ना। और वो अवास्तविक चीज़ों की सामग्री आप यदि अपने भांडार में भर के रखेंगे, अपने मेमोरी में वो डाटा फीड करके रखेंगे, तो नेचुरली वो आपका लाइफ उसके कारण सुसह्य नहीं होगा। तो इसीलिए जो जरूरी और जो उचित जानकारी है, उसके आधार के ऊपर आप अपनी जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल डेवलप कीजिए। बहुत सारा ज्ञान है संसार में भरा है, बहुत सारा ज्ञान हमने देखा कि ये तो स्वार्थ प्रेरित है, क्या सही है और क्या सही नहीं है इसकी भी जानकारी लेने के लिए आपकी मनस्थिति द्विधा हो जाती। यानी बताने का मतलब, अभी जो आपका प्रवास चल रहा है ये टोटल केओटिक और कन्फ्यूजनल रिदम में चल रहा है। तो आप ये कन्फ्यूजन से हट जाइए, आखिर मरना तो सबको है, एवरीबडी इज सपोज टू डाई हियर ऑन द प्लेनेट, कोई यहाँ चिरंजीवी करके आया नहीं। तो आप जो प्रवास करने का आपको मौका मिला है ना, वो डर के प्रवास क्यों करते। यहाँ डर तो कभी एग्जिस्टेंस में रहता ही नहीं, ना भी कोई वैज्ञानिक संशोधन द्वारा आपको उसको प्रत्यक्ष रीता बताया गया कि भाई ये जो हमने उपलब्ध कर दिया ये डर ऐसा दिखता है। क्या देखा आपने कभी डर को? देखा कभी नहीं देखा। फिर क्या है डर? क्या, ये तो एक डर का भाव है। आपके मन पे कुछ भी इंसिडेंट्स होती है उसके बारे में बार बार उसको रिपीट करके मीडिया द्वारा और बाकी टेलीकास्ट द्वारा आपके मन पे प्रतिबिंबित किया जाता। यानी पहला आपका जो लाइफ फोर्स की एनर्जी जो है, जो कम होती, वो आपका माइंड खच्चीकरण करने से होती। और एक बार माइंड का खच्चीकरण हो गया कि बाद में आप उसको कितना भी संवारने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री रिस्टोर होना बड़ा मुश्किल रहता। फिर ये केमिस्ट्री रिस्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो जानकार है उसका आप थोड़ा आधार लीजिए, आपका जिसके ऊपर भरोसा और विश्वास है उससे जानकारी लीजिए, जो आपको सही ढंग का गाइडेंस दे सकता है उसकी जानकारी लीजिए, जिसके प्रति आपका विश्वास है उसकी जानकारी लीजिए। अब यहाँ आजकल का वातावरण भी ऐसा हो गया कि किसके ऊपर भरोसा रखना है ये भी बड़ा मुश्किल काम हो गया, ठीक है, लेकिन आपको भरोसा तो रखना ही है। बिना भरोसे से दुनिया चलती ही नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस लाइफ व्हेन इट केम्स ऑन द प्लैनेट, है ना, तो उसका हीलिंग पावर जो है वो फेथ पे है, यानी भरोसा और विश्वास पे। तो आप ऐसा गुरु ढूंढिए कि जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है और लगता है कि ये व्यक्ति के पास में सहिष्णुता है, उसके पास में प्रेम भाव है और उसके पास में लाइफ एनर्जी, इसके बारे में जो हृदय से आपके पास में भाव व्यतीत कर सकता है और आपकी भलाई चाहता है ना, ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बनाइए। Excellent. ये टीवी पर के गुरु और ये जो आप यूट्यूब के ऊपर पे गुरु दिखते हैं, है ना, Yes. इनका नॉलेज सुनने के लिए ठीक है ना, लेकिन यदि आप वो नॉलेज से प्रभावित हो गए, आत्मसात करते हैं, तभी वो गुरु आपके काम का है। जस्ट देखने के लिए और पढ़ने के लिए यदि आपने वो कर लिया तो वो कुछ माइंड अपना रजिस्टर नहीं करता। दूसरी बात, जो आपको गाइडलाइन देगा वो पॉजिटिव टर्म्स में होना चाहिए। आज तक की गाइडलाइंस आपको कैसे मिली कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप घर के बाहर न टिको, है ना। तो हमने एक देखा कि ये ह्यूमन बॉडी जो चलती है तो इसमें ब्रेन में बहुत कैपेसिटी है, लेकिन ब्रेन में एक ऐसी भी कैपेसिटी भगवान ने दी है कि वो निगेटिव कमांड जो आती है आपको वो कभी रजिस्टर नहीं होती। यदि हम आपको बोलेंगे कि आप रास्ते पे नहीं घूमना चाहिए, है ना, कमांड कैसे निगेटिव टर्म है, उसके बदले यदि हम बोलेंगे आप घर में बैठो, है ना, नन्ना का पारा बड़ा है, आपको पहले से ही नन्ना का पारा बताया, आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम आपको बताते हैं आपको ठीक हो रहा है तो आप ऐसा करते रहो जो आपके माइंड को सही लगता है। करेक्ट। नन्ना बोलने से पहले हमने क्या करना चाहिए ये पूछो उनको। आपको डॉक्टर भी बताता, आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना,
अरे वो नहीं खाने की कमांड कभी ब्रेन एक्सेप्ट करता नहीं, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ब्रेन का सॉफ्टवेयर बस ऐसा बना है। अब आपको दुनिया में पॉजिटिव वे से चलना है तो व्हाई इट शुड रजिस्टर द नेगेटिव कमांड्स। और लेकिन आपको सुधारने के लिए जो कुछ भी कमांड्स देने में आई है, ये देखा हमने, वो सब नेगेटिव लैंग्वेज में। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, हमने क्या करना चाहिए उसके बारे में हमको सही ढंग से जानकारी दो ना, सही बात। पॉजिटिव कमांड्स में दो ना, तो हमारा ब्रेन रजिस्टर करेगा। दुनिया का ब्रेन ऐसा ही चलता। तो इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा का संचय होने के लिए आप पॉजिटिव फील्ड में रहिए, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो आपका जैविक फोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहिए। और उनके बातों पे भरोसा करके यदि आप जीवन प्रणाली करोगे, आपका जीवन क्रिया करोगे, तो निश्चित ही आप में पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी गेन हो जाएंगी। और ये डर जो है ना, ये निगेटिव भाव है, इसको निकालना पड़ता। तो कॉन्फिडेंस और विश्वास यदि आपने खुद के ऊपर जागरूक रखा, ये सृष्टि करता है, जो नियमन करता है सृष्टि का, उसके अभी इतने आपने रेगुलर प्रेयर की है ना, तो वातावरण 100% परावर्तित होता है। ये मैं कहता हूँ, प्रेयर में इतना पावर है, इतना पावर है कि असाध्य काम और असाध्य रोग भी उससे नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप सरेंडर होकर आपके क्रिएटर को शरण जाओ, शरणागत जाओ। आप देखो, आप दुनिया के मालिक नहीं, आप दुनिया में संचारित होते हैं, लेकिन आपका मालिक जो है ना, और आपके अंदर में ही बैठा है, आप वो आपके मालिक को एक्टिवेट करके सरेंडर हो जाए। डेली प्रेयर कीजिए, ऐसे भयमुक्त वातावरण निकालने के लिए आप डेली प्रेयर कीजिए, है ना। बहुत जगह सामुदायिक प्रेयर की तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ना। अकेले में आप प्रेयर करने से जो भाव जनरेट होते हैं, वो सामुदायिक यदि प्रेयर होती रही तो ये आउटर फील्ड का जो कॉन्शियसनेस है, ये परावर्तित होता है। जैसा कि पुराने जमाने में बारिश नहीं आती थी तो लोग वहाँ पे कुएं में नहीं तो तालाब में कोई मूर्ति को डुबा के बाद में एक मोर्चा निकालते थे, सारे गांव को प्रदक्षिणा मारते थे और एक रिक्वेस्ट करते थे कि ये भगवान बारिश गिरने दे, यहाँ पे अकाल आ जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। और बहुत बार ये जो क्रिया करते थे, इसका प्रत्यय ऐसा आता था, वो क्रिया सक्सेस होती थी। सक्सेस क्यों होती थी कि ये सामुदायिक रीति से परिवर्तन करते थे नेचुरल लॉजिक में। नेचुरल लॉजिक सुनता है, यदि मॉब में और ग्रुप में यदि आप लोग डिमांड करोगे, है ना, तो सुनने वाला बैठा है, वो तो बात सही है इनकी, ये मेरे को शरण आ गए, मेरे को प्रार्थना कर रहे, उनका फर्ज बनता, यू कंपेल योर गॉड टू प्रोटेक्ट यू, है ना। लेकिन अभी कैसा है, संचार बंदी होने के कारण आप ग्रुप में तो नहीं आ सकते, लेकिन आप घर के सभी मेंबर इकट्ठा होके, अकेले प्रार्थना कर से इकट्ठा होके आप सरेंडर होके प्रार्थना भी यदि करोगे तो भी आपको कोरोना से मुक्ति मिलेगी। इसके बारे में हमको कोई दुमत नहीं। Excellent. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ द प्रेयर। हाँ, प्रेयर के कारण में दुनिया जीत सकती। प्रेम भाव से रहो, क्रोध मत करो, किसी का क्रोध मत करो। क्रोध से भी अपने शरीर की एनर्जी की बहुत हानि होती है, विपरीत टाइप के केमिकल्स लिबरेट होते हैं। इसके कारण आप जो भोग रहे अभी, वो हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब क्रोध की उत्पत्ति है। तो जीवन जो आया है प्लैनेट के ऊपर में प्रेम भाव में जीने के लिए आया है, सहिष्णुता का जीवन है ना। आप ये जो गुण मिले, ये जो माइंड को गुण मिले, है ना, इसको प्रभावी बनाओ ना। आप प्रेम भाव जागृत करो और सबके साथ मिलजुल के यदि रहेंगे तो क्रोध आने की जरूरत है नहीं। व्यावहारिक जीवन होगा भी, लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में आप लोग जो स्वार्थ आ गया आपको व्यवहारिक जीवन में, यहाँ की सत्ता काबिज करने का, आखिर आपके हाथ में तो कुछ नहीं आता। जब आप जाते हैं तो सब यहाँ छोड़ के जाते हैं, है ना। और उसके कारण में आप जो कष्ट उठाते रहते जिंदगी भर, हाँ, ये कष्ट उतने उचित भी नहीं लगते। उस टाइम आपको लगता है ये इतना मैंने काय के लिए करके रखा, लेकिन उससे कारण क्या होगा, जीवन समय हमेशा के लिए आपका तो दुख में ही रहता है ना। जब आपको जाना है, सब छोड़ के ही जाना है, तो आपकी फिलॉसफी बनाओ। आप पहले अपने लाइफ की फिलॉसफी बनाओ। ये लाइफ जो है, लाइफ को जानो पहले कि ये चीज़ विस्मयकारी चीज़ है, ये रहस्यमय चीज़ है, उसको कैसा क्या हैंडल करना चाहिए, कौन से रास्ते से कैसी गाड़ी चलाना चाहिए, ये आपकी बुद्धि के तर्क बताती है। आप अपना इंटेलिजेंस बढ़ाओ पहले और सोच बढ़ाओ, और अपनी स्वयं की सोच फॉर्म करके ये जो आपत्तियाँ है इसका सामना करना सीखो, विश्वास बढ़ाओ, तो आपको इसमें से अपने आप ही कोई खुद होके इसका रास्ता मिल जाएगा आपको। जीवन में, जीवन का मार्गक्रम करने में मैं सुचिंतित करता हूँ, और आपको एवरी बीट ऑफ द लाइफ के ऊपर आपका सक्सेस होना चाहिए, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए और हैप्पी आपका लाइफ आना चाहिए। ऐसी शुभकामना करने के साथ में मैं अपना
एडवाइस जो है, जो उपदेश करने को बोला हमको मिर्जा साहब ने, है ना, इसका आप पालन करोगे तो बेहतरीन होगा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।